वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. नवीनतम एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार लगातार चौथी बार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता बना है। According to the latest NCRB report 2023, Kolkata has been ranked as the safest city in India for the fourth consecutive time. 2. एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। The 9th edition of Asia's largest telecom, media, and technology event, India Mobile Congress 2025, was inaugurated in New Delhi. 3. नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऑटोमोटिव उद्योग देश के जीडीपी में 7.1% का योगदान देता है। According to the NITI Aayog report, India's automotive industry contributes 7.1% to the country's GDP. 4. जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। The Jananayak Karpuri Thakur Skill University was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. 5. हाल ही में भारत में दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में किया गया है। Recently, the world's highest motorable road has been constructed in Ladakh, India. 6. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना का शुभारंभ नई दिल्ली में किया। Prime Minister Narendra Modi launched the PM Setu scheme in New Delhi. 7. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने एक दिवसीय हितधारक आउटरीच कार्यक्रम और कार्यशाला का आयोजन इंदौर में किया। The National Financial Reporting Authority organized a one-day stakeholder outreach program and workshop in Indore. 8. पंजाब सरकार ने मेरा घर, मेरा मान योजना की शुरुआत की। The Punjab government launched the मेरा घर, मेरा मान scheme. 9. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले बड़े गैस वाहक पोत, शिवालिक, का शुभारंभ विशाखापत्तनम बंदरगाह पर किया। Union Minister Sarbanand Sonowal launched India's first large gas carrier vessel, Shivalik, at Visakhapatnam port. 10. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन रिपोर्ट भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी की गई। The Market Study on Artificial Intelligence and Competition report was released by the Competition Commission of India. 11. चौथा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन KEC 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। The fourth Kautilya Economic Conference KEC 2025 was held in New Delhi. 12. वर्तमान में महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, जो 35 से 40% उत्पादन करता है। Currently, Maharashtra is the largest sugar-producing state in India, contributing about 35 to 40% of total production. 13. वर्ष 2025 में विश्व ओजोन दिवस का थीम विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक रखा गया है। The theme of World Ozone Day 2025 is From Science to Global Action. 14. वर्ष 2014 से 2025 के दौरान भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 748.78 अरब डॉलर रहा। During 2014-2025, India received a total foreign direct investment (FDI) of $748.78 billion. 15. हाल ही में संपन्न विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 6 स्वर्ण पदक जीते। India won a total of 6 gold medals in the recently concluded World Para Athletics Championships 2025. 16. आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मूलर था। The first European to call lions a race was Max Muller. 17. नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, ये स्थिति एकाधिकार में होती है। New firms are not allowed to enter the market under monopoly. 18. कीन्ज ने कहा था कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है। Keynes stated that the propensity to consume remains stable in the short run. 19. भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। The largest commercial bank in India is the State Bank of India. 20. राजकोषीय नीति का संबंध सरकार की आय तथा व्यय से होता है। Fiscal policy is related to government revenue and expenditure. 21.
भारत में कृषि आय की गणना उत्पादन विधि से की जाती है। Agricultural income in India is calculated by the production method. 22. नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। The Blue Revolution is related to fish production. 23. प्रसिद्ध क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। The famous Kruger National Park is located in South Africa. 24. जो बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था, वह भारतीय स्टेट बैंक है। The bank formerly known as the Imperial Bank of India is the State Bank of India. 25. द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। The second 5-year plan was based on the Mahalanobis model. 26. नाबार्ड का पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट है। The full form of NABARD is National Bank for Agricultural and Rural Development. 27. हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। The concept of judicial review in the Indian Constitution has been borrowed from the US Constitution. 28. भारत का संविधान 26 अगस्त 1949 को स्वीकार किया गया था। The Constitution of India was adopted on August 26, 1949. 29. राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है। The term of the Rajya Sabha is permanent. 30. भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना कनाडा के संविधान से ली थी। The Indian Constitution borrowed the federal structure from the Canadian Constitution. 31. आदर्शवाद का जनक हेगल को माना जाता है। Hegel is regarded as the father of idealism. 32. भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। Disputes related to the election of the President and Vice President of India are decided by the Supreme Court. 33. पुस्तक Midnight's Children का लेखन सलमान रश्दी ने किया है। The book Midnight's Children was written by Salman Rushdie. 34. विदेशी मुद्रा दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए किया जाता है। The foreign exchange rate is the rate at which a country's currency is traded for another in the foreign exchange market. 35. भारतीय संविधान के भाग एव में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। Part A of the Indian Constitution, which contains the directive principles of state policy, establishes India as a welfare state. 36. अमीर अली वरीद को दक्कन का लोमड़ी कहा गया था। अमीर अली वारिद was called the fox of the Deccan. 37. ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान हेतु दिया जाता है। The ध्यान चंद Award is given for lifetime contribution in sports. 38. आँख, कान और नाक के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। Doctors of eyes, ears and nose use a concave mirror. 39. टी कृष्णामाचारी ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को भावुकता का कूड़ादान कहा था। टी कृष्णमाचारी called the directive principles of state policy the dustbin of sentiment. 40. श्वसन एक मंद दहन है। Respiration is a slow combustion. The 16th of October Current Affairs Questions 2025. 1. Which neighboring country of India recently received a $1.2 billion loan from the IMF? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश को IMF से $1.2 बिलियन का ऋण प्राप्त हुआ है? आंसर पाकिस्तान। 2. Which country has been recognized by the WHO for eliminating mother-to-child transmission of hepatitis B, HIV, and syphilis? WHO ने हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने के लिए किस देश को मान्यता दी है? आंसर मालदीव। 3. India's Power Planning Authority has prepared a transmission plan worth how many $billion to transfer more than 76 gigawatts of hydropower? भारत के विद्युत नियोजन प्राधिकरण ने 76 गीगावाट से अधिक जल विद्युत को स्थानांतरित करने के लिए कितने $बिलियन की ट्रांसमिशन योजना तैयार की है? आंसर $77 बिलियन। 4. India's retail inflation fell to what percentage in September 2025, the lowest since June 2017?
भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2025 में घटकर कितना प्रतिशत हो गई है, जो जून 2017 के बाद सबसे कम है? आंसर 1.54%। 5. Which sector in India has seen its growth increase nearly sixfold from 1.9 lakh rupees crore in 2014-15 to 11.3 lakh rupees crore in 2024-25? भारत का कौन सा क्षेत्र 2014-15 में 1.9 लाख रुपए करोड़ से लगभग 6 गुना बढ़कर 2024-25 में 11.3 लाख रुपए करोड़ हो गया है? आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन। 6. Which bank recently announced that it has been named Asia's safest bank by Global Finance? हाल ही में किस बैंक ने घोषणा की कि उसे ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? आंसर DBS बैंक। 7. In which year will space technology company Galaxy launch the world's first multi-sensor EO satellite? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी गैलेक्साई किस वर्ष दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह प्रक्षेपित करेगी? आंसर वर्ष 2026 में। 8. Who released the book Ready, Relevant and Resurgent 2, Shaping a Future Ready Force, written by C.D. Anil Chauhan, on October 14, 2025? किसके द्वारा 14 अक्टूबर 2025 को C.D. अनिल चौहान द्वारा लिखित पुस्तक रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2, शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स का विमोचन किया गया है? आंसर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। 9. Net direct tax collection has increased to how many lakh crore rupees in the current financial year? चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है? आंसर 11.89 लाख करोड़। 10. Who recently launched the विश्वास स्कीम to curb EPF litigation? हाल ही में किसके द्वारा EPF मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है? आंसर श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया। 11. When is International Rural Women's Day celebrated to highlight the role of women in rural areas? ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 15 अक्टूबर। 12. Currently, India is Saudi Arabia's largest trading partner. वर्तमान में सऊदी अरब के लिए भारत सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? आंसर दूसरा। 13. Where did Defense Minister Rajnath Singh hold talks with the Brazilian Vice President and Defense Minister? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहां ब्राजील के उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के साथ वार्ता किया है? आंसर नई दिल्ली। 14. According to a recent survey, approximately what percentage of Indian companies have achieved significant AI maturity? हाल ही में एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग कितनी प्रतिशत भारतीय कंपनियों ने बड़े पैमाने पर AI परिपक्वता हासिल कर ली है? आंसर 26%। 15. Where has India's first QR-based kiosk for paying traffic fines recently been installed? हाल ही में कहां ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला QR आधारित कियोस्क स्थापित किया गया है? आंसर गुरुग्राम में। थैंक यू। सब्सक्राइब मुस्कान स्टडी मटेरियल फॉर डेली करंट अफेयर।